नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या ऑटोमोबाईल मराठी आपल्या मराठमोळा यूट्यूब चॅनलवरती। आणि मित्रांनो, मी आज आलोय टाटा मोटर कमर्शियल व्हेकलच्या पिंपरी प्लांट या ठिकाणी आज BS6 फेज 2 सीरीज जी येते या ठिकाणी लॉन्च देखील होणार आहे आणि आपल्या चॅनलला देखील इन्व्हिटेशन होतं, त्यामुळे आपण प्लांटमध्ये आलेलो आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला टाटा मोटर कमर्शियल व्हेकलची सर्व सीरीज योद्धा, इंट्रा, टिपर सेगमेंट, ट्रक सेगमेंट, सिग्ना सीरीज संपूर्ण रेंज जी येते BS6 फेज 2 मध्ये या ठिकाणी अनवील करणार आहे टाटा मोटर कमर्शियल व्हेकलकडनं। तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा। तर मित्रांनो, आता आपण आतमध्ये जाऊन बघूया इव्हेंट कसा ऑर्गनाइज केला आहे टाटा मोटर्स। मित्रांनो, आता आपण टाटा मोटरच्या प्लांटमध्ये आतमध्ये आलेलो आहे। आता मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवतो की आतमध्ये इव्हेंट वगैरे कसा करण्यात आलेला आहे आणि कसं नियोजन टाटा मोटरचं लॉन्च इव्हेंटसाठी आहे। जे BS6 फेज 2 गाड्या जे ते लॉन्च होणार आहे, त्याचा पूर्ण लॉन्च इव्हेंटचा इव्हेंट जो आहे तो कसा ठेवलेला आहे तो आपण इथे बघूया आतमध्ये। मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओमध्ये असा प्रॉपर एक भव्य दिव्य इव्हेंट टाटा मोटर कमर्शियल व्हेकलने IDA नॉर्म्सचे भारत सरकारने लागू केलेले BS6 फेज 2 साठी आज संपूर्ण रेंज येते टाटा मोटर कमर्शियल व्हेकलची इथे लॉन्च देखील होणार आहे। आणि प्रॉपर पूर्ण इव्हेंट जर बघितलं एकदम भव्य दिव्य इव्हेंट जो आहे तो प्लॅन मध्ये ठेवण्यात आलेला। तुम्हाला हा इव्हेंट कसा वाटतोय आणि पूर्ण व्ह्यू कसा आहे तो कमेंटच्या माध्यमातून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा। This association. As influencers, you have the ability to reach millions of people and add credibility to our organizational purpose and vision. So without further ado, for today's opening address and to tell us more about BS6 Phase 2 and the journey so far and the way forward, please join me as I welcome to the stage the President and Chief Technology Officer of the Tata Motors Commercial Vehicle Business, Mr. Rajendra Pedkar. Good morning. Good morning. So good morning and welcome from my side to all of you for this meet of today, which is focused on the BS6 phase 2, the range of the product and the technologies, what Tata Motor has been able to launch. Now, before I get into the BS6 phase 2, let me go back to 2017. In 2017, driven by the concern of the urban air pollution, the government of India decided to basically leapfrog from the BS4, which was in vogue in 2017, to actually migrate to straight to the BS6 phase 1 in 2020 in a span of 3 years. Now the Western world took about 7 to 9 years, on an average say 8 years, for this kind of a migration in their countries. And in India, we actually were challenged to do the same in a span of 3 years. Now what it meant for Tata Motor was to undertake the complete product transformation from the BS4 to BS6 across its vast range of the passenger and the commercial vehicles. So while we knew that the BS4 to BS6 is going to significantly call for deployment of a technology and the attendant increase in the vehicle cost, but it was very clear to us what matters to the customer is the customer facing attributes. And therefore, as a part of the plan of a migration from BS4 to BS6, we decided to go beyond mere the emission regulation, but offer something which actually provides a value to the customer. So the journey to provide the value to the customer became a central theme of a regulation migration for Tata Motors, and therefore the products which got launched under the BS6 phase 1, which actually got implemented from 1st of April 2020. We had an all-round the product enhancement, I would say. It was a complete product transformation journey, and we actually, in the case of the commercial vehicles, we increased the vehicle performance in terms of the engine power and torque, the torque at the wheel. We also improved the total cost of ownership, the fuel efficiency. We actually brought in for the first time a very comprehensive suite of the connected vehicle features. The safety was taken to as the central theme for the commercial vehicles, and we also came up with the design language for the commercial vehicles, and we also kept the driver at the center
of the vehicle and entire migration in terms of the accommodation and the usage or the comfort and the convenience what is offered to the commercial vehicle operator. So all of this while we did as a part of the migration from BS4 to BS6 phase 1, but it was very clear at that time that the phase 2 of the BS6 was not going to be far away, and the date that was announced was the 1st of April 2023, which is just the last month that we have done the migration to BS6 phase 2. Now what this BS6 phase 2 meant? Now I'll tell you something first about in terms of the regulation. There are 4 major interventions from BS6 phase 1 to BS6 phase 2. And what are those 4? The first one is about becoming the OBD regulation becoming much more stringent. Now what is OBD? It is nothing but the onboard diagnostic, which means, if there is a likelihood of the emission threshold exceeding the norm, there has to be the indication to the operator or the driver that there is the possibility that you would actually exceed the emission value, and therefore there is something which is going to go wrong. And with the help of number of sensors which are provided on the vehicle, the driver gets actually the indication that he needs to actually do the servicing of the vehicle. Now servicing not the entire vehicle, but in the area where the input actually comes to the driver on the OBD monitor, and therefore that particular area actually can be serviced. Now this OBD, though it started, I would say in the BS4, it became significantly stringent in the case of the BS6 phase 1, and it became even more stringent in the case of the BS6 phase 2. And so almost the OBD norm, I would say, is approaching the type approval. Type approval is for the new vehicle, whatever is the regulation. That is the kind of a norm which is becoming applicable now for the BS6 phase 2 vehicle. So this is one of those 4 what I said. The number 2 significant intervention of the BS6 phase 2 is about IUPR. Now this is the jargon. IUPR is the in-use performance ratio, which means how often you are actually doing the monitoring of the OBD parameters. And there is a requirement as per the regulation and as a part of the development of the product and the technology deployment, we actually take care of the fact that the IUPR requirements need to be met. So that's something which is the second part of the BS6 phase 2 regulation. The third one is about the in-service conformity. In-service conformity means that, how robust is the emission performance of the vehicle throughout its normal useful life. And one is supposed to actually monitor the emission performance depending on the category of vehicle for say 1 lakh kilometer, up to 1 lakh kilometer, up to 3 lakh kilometer, up to 7 lakh kilometer. So that is the kind of a stringency which is there. And the fourth one and the most important is about monitoring the emissions from a moving vehicle called as the RDE, which is the rear driving emission. And what we do there is actually you connect the big set of equipment to the tailpipe of a vehicle and do the measurement of the emission on a route which is defined by the regulators and acquire the emission profile from the tailpipe of the vehicle, and the values need to be below certain threshold values. So these are the 4, I would say, the significant interventions which are coming as a part of the BS6 phase 2. But here again, when we decided to actually lay down the strategy for Tata Motors for the BS6 phase 2, the approach has been to basically go beyond the regulation. What we started in BS6 phase 1, we decided to actually raise the bar further. We decided to go and take the feedback what we got in the case of the BS6 phase 1, incorporate all the feedback and take it to a much significantly higher level in terms of all the product attributes. So across the range of the vehicle, again we have gone for the significant increase as far as the power and the torque is concerned. The basic vehicle performance in terms of drivability, in terms of the acceleration, in terms of the restart capability, in terms of the fuel efficiency, in terms of the total cost of ownership, and actually we have taken the safety to the next level. Now Tata Motors products are known for the safety. I don't have to elaborate much. Emergency braking, lane departure warning, lane keep assist, and also
the driver monitoring system which actually can detect the driver drowsiness. So many of these features which have not been there until now on the Indian road for the Indian trucks are something which have been provided as a part of a feature list for the commercial vehicle. Then beside performance, beside the safety, the comfort and the convenience have been taken to the next level. The connectivity where we started as a part of the BS6 phase 1. Now in the case of the phase 2, we are coming up with the significantly enhanced connected vehicle features. And what actually it can do best to the customer, actually by leveraging the power of the connectivity through the telematics, he can actually define the route map, he can define the schedule for the maintenance, he can actually improvise the overall total cost of ownership. Because the entire data, entire route map, including the ability of a fleet owner to check whether the goods are available for the return journey or not. So all of that gets enabled by the connectivity features which have been provided. And as if that is not enough, we also have gone to something called as the FOTA, which is nothing but the firmware over the air, which means that whatever the enhancements that we would be needing to be done over the life of a vehicle, we actually can provide them remotely by actually flashing the calibration from the remote location. Just like today on the mobile, we have that feature. So when it comes to the BS6 phase 2, I think that what is said here on the placard here, which is about smarter, greener, safer, with the performance, with the total cost of ownership, is something which is a hallmark as far as the Tata Motors range of the BS6 phase 2 products are concerned. Who leads the buses product line so that he can give us a perspective on this portfolio. Mr. Srivastava, welcome, sir. नमस्कार, मैं यहीं से बात करता हूँ, तो फिर स्क्रीन ब्लॉक होगा। ओके, सो कुछ चीज़ें मेरे प्रेजेंटेशन में आपको रिपीट होती सी लगेंगी जो अनिरुद्ध ने दिखाया। अनिरुद्ध कॉमन एलिमेंट हैं, सारी गाड़ियाँ कंपनी की यही बनाते हैं। तो लेकिन तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से बस पोर्टफोलियो में हम कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं जोर देने की कोशिश करूंगा। और ये जो चीज़ें आपने कुछ देखी जो अनिरुद्ध ने दिखाई कि हमने गाड़ियों में इंट्रोड्यूस की हैं, उनका कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी भी एक ब्रीफली बात करने की कोशिश करूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि देखिए, आज के डिस्कशन में हम BS6 ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो दो ट्रांजिशन हुए 2 साल के अंदर। एक हुआ BS4 टू BS6, अब BS6 से BS6 फेज 2, जिसको हम इन यूज मेजरमेंट बोलते हैं। ये जर्नी, ये जो काम है गाड़ियों को अच्छा करने का, मोर यूजफुल बनाने का, ये बहुत ही जल्दी नहीं हो पाता। इसमें एक जेस्टेशन पीरियड है, कम से कम 18 महीने, 2 साल, कई बार 3-3 साल भी लगा करते हैं। तो ये जर्नी, जैसा पेडकर साहब बोल रहे थे अपने स्पीच में, कि 2017 में शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं ये सोच वही शुरू हो गई थी और धीरे धीरे इसको फ्रक्टिफाई करने में जो टाइम लगा, और आज ये रियलिटी है। तो मैं शुरू करता हूँ कि हम अपने कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही इलैबोरेट पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं। तो बस में एक बड़ी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हर रिक्वायरमेंट अलग है। कोई स्कूल है, कोई स्टाफ है, कोई इंटरसिटी है, सारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। इन सब की फीचर रिक्वायरमेंट अलग है, इन सब की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट भी अलग है। स्कूल बस के नॉर्म्स अलग हैं, स्टाफ बस के नॉर्म्स अलग हैं। टाइप 1 बस होती है, टाइप 2 बस होती है, टाइप 3 बस होती है, टाइप 4 बस भी होती है। और इसके अलावा और भी जो स्पेशल एप्लीकेशन बसेस हैं, टाइप 4 में काउंट होती हैं, उसमें और भी एप्लीकेशन बनाते हैं, बट आज उसकी बात नहीं करेंगे। अगर आप इस स्लाइड को देखें, बिकॉज ये INLCV का पोर्टफोलियो है, जिसमें हम 3 इंजन ऑप्शंस ऑफर करते हैं। पहली बात तो एक 4 SPCR इंजन है, एक 3.3 और एक 3.8 है, तो डीजल और CNG। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस भी है, बट आज का सब्जेक्ट हमारा BS6 का है, फेज 1 फेज 2 का है। इलेक्ट्रिक बस का कभी और बात करेंगे। एक बड़ा ही इलैबोरेट पोर्टफोलियो उसमें भी है। 3 इंजन ऑप्शंस में हर तरह के व्हील बेस,
जिस तरह का टायर साइज है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये फील मिलना चाहिए कि बसेस में बहुत यूनिक रिक्वायरमेंट होती है हर एप्लीकेशन की, और हर एप्लीकेशन को समझते हुए प्रोडक्ट प्लानिंग के मेरे कलीग श्रीनिवास यहाँ बैठे हैं, हर एप्लीकेशन को समझते हुए एक स्पेसिफिक मॉडल डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, सिमिलरली आप देखेंगे ये एमसीवी पोर्टफोलियो, यहाँ भी 3 इंजन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एक 5.6 कमिंस, एक 5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन और एक 5.7 सीएनजी। नीचे ये जो आप देख रहे हैं व्हील बेसेस, ये यहाँ ऊपर आ गए, ये जो व्हील बेसेस है इन सब में मैंने ये टिक्स लगाए हैं। जो ये ऑरेंज वाले आपको दिख रहे हैं ये सब नए एडिशन है जो हमने BS6 में और भी मार्केट रिसर्च की। To innovate, to get more out of technology. Go towards a future that functions smarter, looks greener, and feels much, much safer. Tata Motors Commercial Vehicles, Desh ke trucks. And now to talk to us a little bit more about small commercial vehicle planning, Mr. Ashish Tandon. Good morning and very warm welcome once again for our BS6 Phase 2 meeting. Small commercial vehicles जो हम जानते हैं ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एक रोजगार के लिए एक ये गाड़ियाँ होती हैं जो आप कहते हैं ना बिजनेस स्टार्टअप। तो दिस इज अ बिजनेस स्टार्टअप व्हीकल रेंज। तो जब लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि आगे उनको जॉब करना है या उनको कोई बिजनेस करना है, तो पिछले 15 साल में 25 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन गाड़ियों के थ्रू टाटा मोटर्स ने किया है। और हमने स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स की फाउंडेशन भारतवर्ष में रखी। तो जब फेज 2 की बात आई तो टाटा मोटर्स की फिलॉसफी है कि कोई भी रेगुलेशन जब हम लगाएंगे साथ में तो कस्टमर को क्या फायदा होगा, तो वैल्यू एनहांसर्स कितने आप दे सकते हैं कस्टमर्स के लिए, उसका वैल्यू क्रिएशन आप क्या कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। रेगुलेशन तो 3 साल में 5 साल में 6 साल में जब भी आएंगे, तो हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी को यूज किया कि कस्टमर का बेनिफिट हम कैसे करा सके। तो कस्टमर का बेनिफिट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने चाहिए, वो मैं आपको शीट में दिखाऊंगा। की वॉइस को कैप्चर करते हैं, उसके बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं कि कौन सा चीज हम फिट करने से कस्टमर को वैल्यू अच्छी मिलेगी। और ये पूरा प्रेजेंटेशन इज ओनली अबाउट कस्टमर वैल्यू क्रिएशन एंड एनहेंसमेंट थ्रू दी BS6 फेज 1। तो हमारे 5 प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको एक एक करके एक प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट, पहला है एस प्लेटफॉर्म, जिसका मैंने आपको बात किया कि 25 लाख गाड़ियां इंडिया में चल रही हैं। और ये गाड़ी आपने देखी होगी, टिपिकली लास्ट माइल डिलीवरीज में आपके घर में जो डिलीवरी होती है उसमें ये गाड़ी यूज होती है। नेक्स्ट, तो अब जब कस्टमर की वॉइस की बात आई कि उनको क्या चाहिए, तो 2 चीजें निकल कर आई। एक तो गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस के लिए क्या हमने किया कि गाड़ी का जो टॉर्क है, टॉर्क देखिए आप 22% के करीब बढ़ाया हमने। गाड़ी का जो पावर है वो हमने इंक्रीज किया, और उसकी वजह से जो ड्राइवेबिलिटी इंपैक्ट है, ड्राइवेबिलिटी का मतलब होता है कि आप लोग जब अपनी कार चलाते होंगे तो कितना कम एक्सेलरेशन में गाड़ी आगे जा सके, इज व्हाट इज दी ड्राइवेबिलिटी इन ईच गियर। तो इससे क्या फायदा हुआ कस्टमर को कि जब गाड़ी
परफॉर्मेंस अच्छी करती है और 5 गियर उसमें हम लगाते हैं। तो सपोज आप डेली 80 किलोमीटर चल रहे थे डेली का, अब आप ज्यादा ट्रिप्स कर सकते हैं क्योंकि आपकी टाइम ऑफ ट्रिप इज रिड्यूस्ड। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मान लीजिए उसको 2 घंटे लग रहे थे, अब वो मे बी 1.5 घंटे में ट्रैवल करेगा, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे कैन इंक्रीज, तो उसका व्यापार बढ़ता है, उसकी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो ये एक चीज हुई। तो इससे कस्टमर को क्या फायदा हुआ कि मोर रेवेन्यू जनरेशन पर मंथ, करीब 5,000 रुपया पर मंथ, जो आज की डेट में सपोज आप पूछेंगे कि उसका रेवेन्यू कितना होता है, तो आज की डेट में उसका रेवेन्यू मान लीजिए 50,000 रुपए होता है, तो वो 55,000 रुपए तक उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है। We believe in going beyond what's asked of us. Because we're in the business of nation building. Perhaps that's why doing just enough isn't enough. Not for us, no. We strive to be better each day. We choose to do more, to innovate more, to get more out of technology, to go beyond so that you can too. Go beyond utility. Go across terrains. Go ahead of worries. Go past cost calculations. Go towards a future that functions smarter, looks greener, and feels much, much safer. And the only way to build that tomorrow is to go beyond today. Tata Motors Commercial Vehicles, Desh Ke Trucks. We believe in going beyond what's asked of us. To innovate more, to get more out of technology, to go past cost calculation, go towards a future that functions smarter, looks greener, and feels much, much safer. Tata Motors Commercial Vehicles, Desh Ke Trucks. कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना हाथ ऊपर करें ताकि मैं आपको माइक दे दूं एंड देन जी सर एक के बाद एक विल स्टार्ट। इस तरह से जाना कि आरटी कंप्लायंस व्हीकल्स किस तरह से आपने यहाँ पर लॉन्च किए हैं, चाहे वो एससीवी हो, आईएससीवी हो, एचसीवी हो, पर उसके सिवाय आपने क्या यहाँ पर मेजर चेंजेस क्या किए हैं, तो कुछ के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। तो मेरा प्रेजेंटेशन ठीक था क्या नहीं मैं समझा नहीं, बट मैंने वही बताने की कोशिश किया था कि अपार्ट फ्रॉम emission compliances, what we had done is many other structural or architectural changes. One, we shifted to a modular platform, and
and what we call the fuel agnostic platform. That is major structural changes which are done on the say frame level, cabin level, suspension level, everything, and engine level. Over and above that, जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने 130 plus value enhancers customers के लिए आएगी. So those value enhancers are actually improving fuel efficiency almost by 5 to 7% than our present BS6 vehicle. We have improved our comfort and convenience across the range, whether it is new steering gearboxes, new seats, or new steering wheels, or also on the suspension for the right handling, right quality, and or when we talk about the efficiency measure, so now tire development हुआ है, which is like a low loading resistance tire, so that it improves the fuel efficiency. We introduce a new bearing, hub bearings on our across the range of vehicles. The friction reduction हुआ है उसकी basis पे. Then electronic architecture completely नया बनाया है. So we have now introduced a 4G telematics unit on our entire vehicle range. With that, the electronic architecture of the vehicle, IVN, in-vehicle networking protocol, we went away from a distributed network to centralized domain controller network. It is again a safe network for the vehicle. Over and above that, all our engine ECUs or vehicle ECUs which are there, controllers which are there, they are now OTA enabled. You can update it over there. ये major prod level changes हुए, and जैसा हमारे रुद्र साहब जैसे बोल रहे थे कि we also went with a completely new cabin, suppose in LPT range of vehicles, complete walkthrough cabin आया है, Prima पे नया facelift launch हुआ है, interior and exterior हुआ है, Ace has become a new modular platform, क्योंकि basically Yoda has become again a new vehicle modular platforms and everything with new facelift arrangement. सब कुछ इसमें है, तो practically it is an entire new vehicle range with 130 plus value enhancers on this side. RDE के साथ में नई कंप्लाइंस आ रही है, तो उसके साथ अब प्राइस हाइक देखने को मिलेगी हमको. तो पहली चीज तो ये समझिए कि हम लोग कमर्शियल व्हीकल के धंधे में, ठीक है, तो कस्टमर्स जो गाड़ी खरीदते हैं वो पैसा कमाने के लिए खरीदते हैं. जैसे जैसे इमिशन नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, गाड़ी की सोफिस्टिकेशन बढ़ रही है, उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसका दाम भी बढ़ रहा है. बट कस्टमर को उसकी वजह से आपके जो रेट्स मिलते हैं उनको पर किलोमीटर वो शायद उतना ना बढ़े. तो हमारी 3-4 सोच थी जिसके तहत अनिरुद्ध उनकी टीम ने पूरा काम किया. पहली चीज तो ये कि अगर गाड़ी का दाम बढ़ रहा है तो कस्टमर की कमाई कैसे हम वो रखें, और उसका एक जरिया जो हमने पकड़ा वो पकड़ा कि फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए ताकि उसका खर्चा कम हो जाए. तो बनिस्बत पहले की गाड़ियों के आपका खर्चा कम होना चाहिए ताकि आपकी कमाई हो जाए. दूसरा, उसका कंफर्ट, उसकी सेफ्टी इनहैंस होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. एंड अक्रॉस द रेंज मेरे ख्याल से काफी फीचर्स हमने ऐसे ऐड किए जिससे कि कंफर्ट और सेफ्टी बढ़ी है गाड़ियों की हमारी जो अभी आ रही है. तीसरा, आपने 8 लाख का छोटी गाड़ी खरीदी या 50 लाख की बड़ी गाड़ी खरीदी, आपका यूटिलाइजेशन उस एसेट का कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए हमने टेलीमैटिक सोल्यूशन भी लेके आए ताकि गाड़ी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके. तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आराम बढ़ा. तो ये सब चीजें लेके कस्टमर को, जो कमर्शियल व्हीकल का कस्टमर है, पैसा कमाने का जरिया बढ़ा और साथ में उसकी आराम और सेहत को भी फायदा हुआ. तो ये सब सोच के साथ अलग अलग तरीके से नई टेक्नोलॉजी लाके, नए सेंसर्स लगा के हमने कोशिश ये की है कि हमारे कस्टमर्स को और बेहतर, केवल इमिशन नहीं मीट किया हमने, कस्टमर की तरफ से सोचते हुए हम कैसे गाड़ियों को अपनी बेहतर करें, वो पूरी एक कोशिश रही है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की. और जो अब हम आज गाड़ियां ले जा रहे हैं मार्केट में, तो हमें पूरा विश्वास है कि कस्टमर्स को ये चीजें ज्यादा पसंद आएंगी और वो उस चीज के लिए अगर थोड़ा ज्यादा प्राइस बढ़ भी रहा है तो उसके लिए वो विचलित नहीं होगा. थैंक यू सर, थैंक यू. सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. टाटा मोटरचं देखील अभिनंदन. BS6 फेज 2 मध्ये सर्व कमर्शियल गाड्या कंबाइन केले. मेरा क्वेश्चन, एक मेन क्वेश्चन रहेगा जो कि हम बहुत मात्रा में देखते हैं
कि मोस्टली जो रोड पे ट्रक चल रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि किसी ट्रक का पेलोड कैपेसिटी 20 टन है तो ऑलमोस्ट 25 या 30 टन तक ओवरलोड लेके जाते हैं। इस वजह से रोड पे एक्सीडेंट या फिर गाड़ियों के ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जब ओवर स्पीडिंग की बात आती है तो गवर्नमेंट ने 80 या 60 का जो स्पीड है वो कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर अप्लाई किया, मतलब उसके ऊपर वो गाड़ियां जाने से। तो ऐसा कुछ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल की रेंज है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी ला सकता है कि जो पेलोड कैपेसिटी अगर 20 टन है तो उससे ज्यादा अगर जो ओनर है वो अगर उसमें मार डालता है तो गाड़ी उसको सेंस करेगी, रोड पे चलेगी नहीं, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी ला सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मली हाईवेज पे घाट सेक्शन पे गाड़ियां ओवरलोड रहती है ट्रक, और वो बंद हो जाते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो कि ड्राइवर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, बेसिकली अगर हम देखते हैं कि पुणे मुंबई हाईवे एक्सप्रेस होती है, वहां पे भी राइट साइड की जो लेन है वो नॉर्मली कार्स के लिए ओवरटेकिंग के लिए रहती है। वहां पे मोस्टली ट्रक ही चलते हैं। बीच में अगर लोनावाला घाट के अगर बीच में आप देखोगे तो वहां पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि ट्रक बोलो आप साइड में हो जाओ क्योंकि आगे पीछे बहुत ट्रैफिक जाम रहे। तो ये दो मेरे मेजर क्वेश्चन रहेंगे कि इसके ऊपर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल किस तरह से सोचता है या आगे वाले फ्यूचर में कैसे काम करेगा। थैंक यू। तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करता हूँ। तो अब्यूज और ओवरलोडिंग अनफॉर्चुनेटली इज द रियलिटी इन इंडिया, बट विद द प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको थोड़ा सा कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा है। एंड पीपल आर ऑल्सो एबल टू, मतलब लोगों को भी पता चल रहा है कि आपके पास अभी हर टनेज पॉइंट पे, हर पेलोड पे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। उसके कारण थोड़ा सा ओवरलोडिंग पे कंट्रोल आ चुका है। डेफिनेटली जो हम बोल रहे हैं कि स्मॉल इंट्रा सिटी एप्लीकेशन रहते हैं, मतलब विद इन द सिटी चलने वाले जो ट्रक्स हैं, स्मॉल ट्रक्स है, उधर तो ओवरलोडिंग पे बहुत सारा कंट्रोल है। इंटर सिटी एप्लीकेशन में रहते हैं जैसे पिकअप्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है और मल्टी एक्सेल हैं, उधर भी चेकिंग के कारण, मतलब रेगुलेटरी चेकिंग के कारण लोगों ने ओवरलोडिंग करना कम कर दिया। जो रिमोट एप्लीकेशन है, माइनिंग, डीप माइनिंग वगैरह रहते हैं, या जो अपने सेक्टर्स एरिया में जल भी होता है उसी वजह से उधर अभी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली इतना कंट्रोल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हर व्हीकल में शूज रहता है, शूज पहले कैसा रहता था कि आपका इंजन का पावर ही इतना कम होता था या सस्पेंशन का स्प्रिंग आपको पता देता था कि आपने बहुत ओवरलोड किया है, बट पीपल यूज टू इग्नोर दैट और आफ्टर मार्केट में वो पट्टी बढ़ा दी, ये कुछ तो फिर गाड़ी चल रही है घाट पे या अमृतांजन ब्रिज पे। अभी हम लंच टाइम पे वही बात कर रहे थे, हम तो कंटिन्यूस बॉम्बे जाते रहते हैं, कभी अल्टरनेटिव ट्रैवल। हमको वही तकलीफ होता है कि आपने जो बोला कि राइट साइड लेन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओवर क्राउडेड एंड देयर इज नो प्लेस लेफ्ट। तो अगर आप देखेंगे तो पहले वो क्यों रहता था कि पावर कम रहता था गाड़ी का, पावर कम रहता था, जब ब्रेक उसके थोड़ा सा आपको फीलिंग आता है कि थोड़ा अनसेफ हो रहा है। बट दीज आर नॉट अ राइट मेजर इन अ सेंस टू कंट्रोल, बिकॉज व्हाट यू रिक्वायर इज अ बेटर कंफर्ट टू द ड्राइवर, यू शुड फील इन अ कमांडिंग पोजीशन सो दैट ही इज एबल टू समटाइम्स ओवरटेक करने को, उसको ओवरटेक का पावर मिलना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा ब्रेक इनइफेक्टिव है इसलिए मैं ओवरलोडिंग नहीं करूँ। हर सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द व्हीकल ओईएम उस पर अभी काम कर रहे हैं। ओईएम जो काम कर रहे हैं, कैसा जीवीडब्ल्यू उसको मॉनिटरिंग मिलेगा, कैसे जीवीडब्ल्यू को उसको अंदाजा आएगा वगैरह। एंड देयर आर मेनी रिसर्च वर्क विच इज हैपनिंग। सिंपल अगर आप देखेंगे जैसा अपना वजन काटा रहता है उसमें वो लोड सेल रहते हैं, उस पर खड़े रहेंगे तो कितना मास आ गया, मास को डिस्प्ले करेगा। बट दिस इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। तो हर मैन्युफैक्चरर ने हर एक टायर के ऊपर एक लोड सेट डाल दिया तो अपने को हर टायर पे कितना लोड आ रहा है उसका सबका टोटल करके आपको पता चलेगा ये 40 टन वाला व्हीकल है या 20 टन वाला व्हीकल है वगैरह। But that is not cost effective solution. So there are some research work which is happening on this point of time, and Tata Motors is also investing a lot onto that research. And I think, I hope there will be some in the very near future, probably some solution will come out, which is the
सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन उसमें से हमको पता चलेगा। उस चीज़ पे जैसा जो यूनिट बोले ना, टेलीमेटिक्स यूनिट वगैरह वगैरह, जो ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कंप्यूटिंग डिवाइस। यूनिट में सब कुछ कैलकुलेशन होता है और आपको पता चल जाए थ्रू क्लाउड नेटवर्क काम चल रहे हैं और ये पता चलेगा धीरे धीरे। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री भी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट उस पर काम कर रहे हैं एंड लकीली मैं भी उसका पार्ट हूँ, मिनिस्ट्री का पार्ट हूँ, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। कमेटी में पार्ट उस पर चले कि कैसा करेंगे उसके बेसिस पे, क्योंकि ये सिर्फ व्हीकल का भी ये नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि ये जो ओवरलोड होता है उसके कारण टायर से जो लोड रोड पे जाता है, रोड उतना लोड भी ले पाता। तो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज सी के रोड अनइवन हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो रोड कांग्रेस जो कमेटी है उसमें भी वो काम कर ले रहे हैं उसके बेसिस पे। बट इन आवर अंडरस्टैंडिंग issues like a power reduction, issues like a unsafe braking, issues like a unsafe suspension is not a way where Tata Motors will. Tata Motors will come out with an innovative solution which will guide the driver from a safety point of view and from overloading point of view. And regulatory framework is getting anyway enforced. तर हे सगळं चालू आहे पॅरलली आणि होईल, गाड्या सेफ राहतील सगळ्या बद्दल। तर आम्ही कसं मेंटेन राहिले की नंबर 1 मॅन्युफॅक्चरर आहोत, आणि तिसरं आम्ही काय करतोय आणि करत राहू की ज्याच्यामुळे आमची मेंटेन राहील त्याच्याबद्दल। जर मी मला सांगितले आमचे जे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट प्रोसेस किंवा ह्याच्यामध्ये दाखवलं की आम्ही 3-4 ॲट्रिब्यूट्स वरती, म्हणजे गाडीची जे महत्वाचे जे फीचर्स नाही म्हणत, ॲट्रिब्यूटला आता मराठीत शब्द काय म्हणायचं मला म्हणलं बट त्या तसं काय सांगा ॲट्रिब्यूटचा शब्द योग्यता। तर आपण जे दाखवलं की आम्ही 18 ॲट्रिब्यूटवरती नेहमी काम करतो गाडीचे डिझाईन करताना। त्यातले 3-4 ॲट्रिब्यूट जे असतात ते ॲट्रिब्यूट हे अत्यंत महत्त्वाचे आमच्यासाठी, आणि त्याच्यामुळं आम्ही इतर मॅन्युफॅक्चररपेक्षा हे वेगळेपणा मेंटेन करतो आणि लिडरशिप मेंटेन करतो। ते कुठलं आहे तर जसं त्यांनी म्हटलं की ड्रायव्हर इज इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, ड्रायव्हर सेंट्रिक प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, ड्रायव्हरच्या अवतीभोवतीची प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, त्याच्या कम्फर्टसाठी, त्याच्या सेफ्टीसाठी, त्याच्या प्रॉफिटेबिलिटीसाठी, त्याच्या फॅमिलीसाठी, हे सगळे फीचर्स किंवा ह्याचे सगळ्या अनुषंगाने हे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट आम्ही करतो। तुम्ही जर बघितलं की त्याला पटिक फ्री ड्रायव्हिंगसाठी त्याला स्टेरिंगचा एफर्ट कमी लागला पाहिजे, त्याचा क्लच एफर्ट कमी असायला पाहिजे, त्याला ब्रेकिंग इमिडिएटली मिळालं पाहिजे, त्याला विशेषतः तर ह्या की ज्याच्यामुळं की तुम्हाला नुसती गाडी नाही तर तुम्हाला त्याची पूर्ण सर्व्हिस आणि त्याचं लाईफ टाईम गॅरंटी त्याचा मिळतात, उपयोगिता गाडीची मेंटेन राहते, ह्या गोष्टीचं म्हटलं जातं। तिसरा जो पार्ट म्हणतो कंटिन्युअस रिसर्च, कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट, कंटिन्युअस एंगेजमेंट विथ द कस्टमर आणि त्याच्याकडनं त्यांची माहिती घेत कंटिन्युअस रिसर्च चालू करत राहिलं। आज जर आपण म्हटलं ना की ॲपलला म्हणतात ना की आय डोंट नीड इट बट आय वॉन्ट इट, करेक्ट? ॲपल तसंच आहे की आज कुणी ॲडॅस मागितला का ऑटोनॉमस गाडी माहिती का नाही, पण जर आपल्याला सेफ जर ड्रायव्हिंग इन्शुअर करायचं असेल, सेफ रोड करायचे असेल, ॲक्सिडेंटचं रिडक्शन करायचं असेल, तो हा रिसर्च कायम चालू राहायला पाहिजे आपल्या कंट्रीमध्ये आणि देशामध्ये। आणि टाटा मोटर्स हे त्यामध्ये नेहमीच अग्रेसर राहिलेलं आहे की जे रिसर्च करत राहून त्या बाबतीत पुढं नेत राहील। जर आपण म्हटलं केबिन, जे सस्पेंडेड केबिन असतात ना मोठमोठ्या ट्रक्सला किंवा सस्पेंडेड केबिनमध्ये काय रिसर्च करायचा, काय गरज नाही आहे, पण त्याचे रबर माउंट्स, त्याचं जे स्प्रिंग असतात केबिन सस्पेंडेडवरती, त्याच्यावरती इतकं काम चालत राहतं की ज्याच्यामुळं आज मी त्या गाडीवर बसून राहिलो तर ॲक्सिलरेशन लेवल जी आहे की पूर्वी 2 मीटर पर सेकंड असायची, त्याचा 0.1 आलेली आहे। तुम्हाला आपण म्हणतो की माझ्या पोटातलं पाणी पण हल्लं नाही, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट? पाणी हल्लं नाही म्हणजे काय की माझी आज सस्पेन्शन इज सो गुड ऑन माय केबिन और ऑन द व्हेकल सस्पेन्शन सो दॅट आय एम फीलिंग दॅट आय एम जस्ट मुव्हिंग स्ट्रेट, महाराजा राईड म्हणतात ना तशा टाईप। ह्यासाठी सतत रिसर्च करत राहणं हे महत्त्वाचं आहे आणि ते आम्ही इन्व्हेस्ट करत राहून त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की आम्ही मार्केट लीडर राहत राहू आणि नंबर 1 कंपनी आहे। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला देश के ट्रक नाम से ऐसा हमारी कैंपेन है, इसके बारे में करीब पिछले 2 वर्षों से अनेक रिसर्च कंपनियों के साथ, विशेषकर AC नीलसन कंपनी के साथ हम अपनी पोजीशनिंग के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। 5000 से अधिक लोगों के पास है भारत में, अनेक एप्लीकेशन अनेक राज्यों में। ये बात निकल के आई कि भारत की जनता
टाटा मोटर्स और टाटा कंपनी दोनों को देश के लिए अच्छा मानते हैं। वो ये समझते हैं कि खरे हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। तो ये ऐसा इक्वेशन जो है, टाटा मीन्स गुड फॉर इंडिया, गुड फॉर कम्युनिटी, पायनियर्स, यानी हर चीज में पहल करी, चाहे वो स्टील में हो, चाहे पावर में हो, चाहे ये इंडस्ट्री में भी हमारी पहल से ही इंडस्ट्री बनी। इसी वजह से हमें लगा, और ये मैं मतलब ह्यूमिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि कम कंपनी कह सकते हैं देश के ट्रक बनते तो बहुत सारे ट्रक हैं यहाँ पे, लेकिन टाटा ने 155 वर्षों से ये कमाई की है कि हम कह सकते हैं टाटा ट्रक्स देश के ट्रक। ये भी एक कारण है कि लोग टाटा को प्रेफर करते हैं। मैं एक चीज ऐड करूँगा, दुनिया में 195 देश हैं, 195 देश। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनकी अपनी घरेलू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना। हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान उनमें से एक है। दुनिया भर में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनकी अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो पहली चीज तो ये देश के हिसाब से हम लोग की अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, अपना काबिलियत है। दूसरा, टाटा मोटर्स ने कई सालों से इंजीनियरिंग और रिसर्च में लगातार इन्वेस्टमेंट किया है। जब हम पूना प्लांट शुरू कर रहे थे तो हमारे मुलगांवकर साहब, उनकी शायद तस्वीर उधर लगी होगी, उन्होंने ये तय किया, क्योंकि उससे पहले हम जर्मन जॉइंट वेंचर में थे, उन्होंने ये तय किया कि टाटा मोटर्स को अगर आगे बढ़ना है तो अपना R&D होना चाहिए, अपना रिसर्च होना चाहिए। और उन्होंने पूना में स्थापना की एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की। और मुझे बताते हुए गर्व है कि कम से कम 2500 लोग इसमें काम कर रहे होंगे। कमर्शियल व्हीकल साइड से तो 5000 लोग तो हैं, टोटल 5000 लोग उसमें काम करते हैं। दूसरा, लगातार अनिरुद्ध और उनके ग्रुप जो है नई टेक्नोलॉजी लाना बहुत आसान है, लेकिन हिंदुस्तान के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं, इस पे लगातार काम होता है। तीसरी चीज, हम कस्टमर्स के बहुत नजदीक रहते हैं, तो हमारी समझ कस्टमर को क्या चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम उसके लिए यूजफुल बना सकते हैं, उस पर लगातार काम होता है। तो ये एक यूनिकनेस कहें या एक अलग बात कहें, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक राइट मिला है टू ग्रो, वो टाटा मोटर्स है, क्योंकि लगातार कई सालों से हमने कस्टमर्स के साथ काम किया, हमने रिसर्च में काम किया, हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, और हमारी काबिलियत सर्विस करने की कस्टमर्स को, जितना बड़ा नेटवर्क, जितना बड़ा सर्विस सेटअप हमारा है, शायद किसी और का हो। तो कई चीजें हैं जो कई सालों से हमें धरोहर में मिली है, हमारे पूर्वजों ने की। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको आगे ले जाए। तो अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है, अभी नई टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन की तरफ अग्रसर हो रही है कई टेक्नोलॉजी, तो उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम प्रयासरत रहे इन सब में और कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, तो टाटा मोटर्स की यूनिकनेस कम नहीं होने वाली, बल्कि बढ़ती ही जाएगी। ये हमारा मानना है। तर मित्रांनो, आजच्या या लॉन्च इव्हेंटच्या माध्यमातून तुम्ही जे बघितलं व्हिडिओमध्ये, टाटा मोटर कमर्शियल व्हेकलच्या पूर्ण टीमने प्रत्येक रेंज पोर्टफोलिओ जी आहे ती गाडीची संपूर्ण डिटेलमध्ये सांगितली, काय काय चेंजेस करण्यात आलेले, फीचर्स वगैरे काय दिले, आणि पहिलेपेक्षा बेटर मायलेज जे ते या गाड्यांमध्ये नवीन फेज 2 सिरीजमध्ये तुम्हाला नक्कीच बघायला मिळेल। आणि खूप खूप धन्यवाद टाटा मोटर कमर्शियल व्हेकलच्या टीमचं देखील आपल्याला इन्व्हिटेशन दिलं या इव्हेंटसाठी। आणि मित्रांनो, या BS6 फेज 2 रेंजमध्ये जर बघितलं तर भरपूर फीचर कंपनीने ॲड केलेले, मायलेज देखील तुम्हाला नक्कीच चांगलं मिळणार आहे नवीन व्हेरियंटमध्ये, आणि ॲडिशनल सेफ्टी फीचर्ससुद्धा दिलेले, आणि प्रत्येक गाडीचा डेडिकेटेड व्हिडिओ जो आहे तो पार्ट 2 मध्ये येणार आहे। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं टाटा मोटर कमर्शियल व्हेकलची जी BS6 फेज 2 मध्ये गाड्याची ती रेंज जी आहे ते लॉन्च इव्हेंट जो आहे तो तुम्ही आजच्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण बघितला, काय काय अपडेट किंवा कोणकोणते फीचर BS6 फेज 2 मध्ये कमर्शियल व्हेकलची रेंजमध्ये काय काय फीचर दिलेले, अपडेट दिलेले, अशी संपूर्ण माहिती किंवा लॉन्च इव्हेंटचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही बघितलाच असेल। आणि आजचा लॉन्च इव्हेंटचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि काय काय गोष्टी जे तुम्हाला BS6 फेज 2 मध्ये चांगल्या वाटल्या ते देखील कमेंटच्या माध्यमातून सांगा। आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, आणि पुढे आपल्याला डेडिकेटेड प्रत्येक गाडीचे BS6 फेज 2 व्हेरियंटचे व्हिडिओ जे ते नक्कीच बघायला मिळणार आहे आपल्या चॅनलवरती। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करून ठेवा, बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, जेणेकरून काय की येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन जे ते तुम्हाला सर्वात आधी। आणि व्हिडिओ जर आवडत असतील तर नक्की लाईक करत चला, कमेंट करून
मला नक्की सांगा आजचा लॉन्च इव्हेंटचा व्हिडिओ जो आहे तुम्हाला कसा वाटला तो, आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ जो आहे तो नक्की शेअर करा. भेटत मित्रांनो नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन गाडीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.